6 महीने का सिलेबस है 2 या 3 महीने में क्या कंप्लीट होता है, और उस 2 या 3 महीने में ही ज़्यादातर जूम में हुआ है, तो क्यों हम ऑफलाइन में थे। हम लोग 4 या 5 दिन से सिर्फ यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा है। हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी कैंपस के सामने, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स चिल्ला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मांग है कि एग्जाम लिया जाए ऑनलाइन मोड पर, क्योंकि क्लासेस ठीक तरह से जो है ऑफलाइन मोड पे नहीं हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस हुआ है, इसके वजह से उनको वक्त नहीं मिला सिलेबस कंप्लीट करने को, इसीलिए उनको चाहिए ऑनलाइन एग्जाम। आइए उनसे ही पूछ लेते हैं कि उनका मांग क्या है। চল रही है আমাদের এই অনলাইন বা অফলাইনের যে গন্ডগোলটা হচ্ছে তার জন্য আমরা যে ইকুয়ালিটিটা চাইছি তার জন্য আমাদের आप क्या चाहते हैं एग्जाम ऑनलाइन मोड पे हो? আমরা তো বলিনি অনলাইনেই দেবো, আমরা অফলাইনেও পরীক্ষা দিতে রাজি আছি, কিন্তু অফলাইনে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রিপেয়ার করা দরকার। আমাদের আজ থেকে 4 মাস কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়ে অফলাइन ক্লাস করানো হোক। आपके हिसाब से क्लास ठीक तरीके से नहीं हुआ है? না, আমাদের 2.5 মাস ক্লাস হয়েছে, তার 1.5 মাস অনলাइन, 1 মাস অফলাइन। अच्छा, तो अगर आज घोषित कर दे कि एग्जाम ऑफलाइन पे होगा, तो लोगों का, आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলতে থাকবে যতদিন না আমাদের দাবি সিউ মানছে। आपका नाम? দীপিকা দাস। किस चीज़ की प्रोटेस्ट चल रही है यहाँ पे? সিউ যদি আমাদের অফলাইন এক্সাম নেয় তাহলে আমাদেরকে সিউকে আরও 4 মাস অফলাইন ক্লাস করাতে হবে, কারণ আমাদের একটা 6 মাসের সেমিস্টার, সেখানে 1 মাস অফলাইন ক্লাস হয়েছে, 1.5 মাস অনলাইন ক্লাস হয়েছে, টোটাল 2.5 মাসের ক্লাসের ভিত্তিতে আমরা কখনোই 6 মাসের একটা সেমিস্টার অফলাইনে দিতে পারবো না। আমরা মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড নয়, পড়াশোনার দিক থেকেও প্রিপেয়ার্ড নই। এছাড়া আমরা অনলাইনের দাবি এই জন্য করছি, অন্যান্য ইউনিভার্সিটি ইতিমধ্যে অনলাইন ঘোষণা করে দিয়েছে, সেখানে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এখনও কিছু ঘোষণা করেনি। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি যদি অফলাইন পরীক্ষা নেয়, অন্যান্য ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের থেকে আমাদের ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টের সিজিপিএ আর নাম্বারের একটা বিস্তর পার্থক্য দেখা যাবে। চাকরির ক্ষেত্রে বলুন, অন্যান্য হায়ার স্টাডির ক্ষেত্রে বলুন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরা পিছিয়ে পড়বে, অন্যান্য ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা এগিয়ে যাবে। এই বৈষম্য যাতে না হয়, তাই জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে স্টুডেন্টদের কথা মাথায় রেখেই আজকে ঘোষণাটা করা হয়। এছাড়াও আমাদের ইউজিসির গাইডলাইন অনুযায়ী জুলাই মাসে রেজাল্ট বের করার কথা, কিন্তু জুলাই মাসে অফলাইন পরীক্ষা হলে জুলাই মাসে রেজাল্ট বের করা সম্ভব নয়, ফলে ইউজি পিজিতে অ্যাডমিশন নিতে পারবে না, পিজিরা হায়ার স্টাডিতে যেতে পারবে না। এছাড়াও অনেক পিজি জব পেয়ে বসে আছে, তারা তাদের জবেও জয়েন করতে পারবে না, একটা একাডেমিক সেশনেরও লস হবে। তাই জন্যই আমরা অনলাइन পরীক্ষাটা চাইছি। आपका नाम क्या है? अनिश। एक लाइन में बस अपने स्लोगन को आप रिपीट हमारे दर्शकों को पहुंचा दीजिए। चलिए। We want equality in all aspect. ओके This is our only call. ओके ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम की आप मांग कर रहे हो? देखिए, हर इक्वालिटी किस बेसिस पे आप बोल रहे हो? Equality System ये है- किस बात की इक्वालिटी चाहिए? Most of the universities in Bengal are conducting online exams. Okay. So why the students of CU are getting, why they are being neglected? हिंदी प्लीज। And so we are actually killing our time. Okay. Instead of studying, we are also studying ourselves, and then we are joining over here. Our call is very simple. If all the universities are conducting their online exams, so do we. Our call is very simple, and we are demonstrating it in a very peaceful way. Okay. So I don't think there is something called very मतलब आपका कहना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है ऑनलाइन एग्जाम कर रही है, दैट्स व्हाई यू वांट इक्वालिटी, दैट्स व्हाई यू वांट अ ऑनलाइन एग्जाम फ्रॉम there is a कलकत्ता। difference between कुछ Okay. and there is a difference between almost. Okay. कुछ का मतलब बहुत फ्यू होगा, ऑलमोस्ट का मतलब है, आप देखिए बंगाल में हर एक यूनिवर्सिटी को अगर पकड़ के देखेंगे तो ऑलमोस्ट उन लोग का टर्म पेपर से लेकर सब कुछ ही ऑनलाइन में जा रहा है। हमारा कॉल तो ये नहीं है कि सिर्फ यूजी पीजी, हमारा कॉल सब एक ही है, वी वांट इक्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन राज है। यहाँ किस बात की प्रोटेस्ट चल रही है? यहाँ यूनिवर्सिटी की 8th सेमेस्टर एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं बिहार से हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की यूनिवर्सिटी का जो क्लासेज है वो ऐसे ही 1-2 घंटा लेकर क्लास चल रही है, कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, पर हमारा एग्जाम को लेकर ऑफलाइन लेने का लोगों का प्रतिष्ठा बनाया हुआ है। तो हम लोग सब लोग चाह रहे हैं कि एग्जाम ऑनलाइन हो ताकि सबको अच्छा एक्सपेक्टेशन मार्क्स मिले। मैं बाहर से हूँ, इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, बस खाली एग्जाम को लेकर ऐसे ही सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाता है। कोई अच्छे तरीके से एक सिस्टमैटिक वे नहीं है पढ़ाने का, बस सिलेबस को कंप्लीट करने का एक टारगेट बनाया हुआ है और सिलेबस को टारगेट को कंप्लीट करके एग्जाम लिया जाता है। यही हो रहा है यहाँ पूरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, यही हो रहा है। यस। अगर तो एग्जाम ऑफलाइन घोषित किया जाता है तो स्टूडेंट्स का या आप
सब लोग तो यही चाह रहा है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से मार्क्स आए। ऑफलाइन होगा तो सब लोग एग्ज़ाम देंगे, ये ज़रूरी है, पर सिलेबस हमारा उस तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। जो भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है रैंडमली ऐसे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया गया है ताकि एग्ज़ाम लिया जा सके, यही हो रहा है। मेरा नाम सलमान है। अच्छा, यहाँ बताया जा रहा है कि सिलेबस जो है बहुत रैंडमली ख़त्म किया गया है, ठीक से पढ़ नहीं पाए लोग, क्या ये बात सच है? দেখুন, আমরা একটা কথা স্পষ্ট বলতে চাই যে আমাদের রাজ্যে যদি অন্যান্য ইউনিভার্সিটি অনলাইনে পরীক্ষা নেয়, এক্সাম নেয়, তাহলে এই মতো অবস্থায় আমরা যদি অফলাইনে এক্সাম দিই তাহলে আমাদের যে অ্যাকাডেমিক স্কোরটা, সেই অ্যাকাডেমিক স্কোরটা কমে যাবে এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় সেক্টরে হোক কি আমরা চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বঞ্চিত হব। যে জায়গায় একটা কলেজ, একটা ইউনিভার্সিটি অনলাইনে এক্সাম নিচ্ছে, তাহলে আমরা অফলাইনে এক্সাম কেন দেব? 2 নম্বর, আমরা অনলাইনে এই কারণে চাইছি যে আমাদের 1.5 মাস ঠিকঠাক ক্লাস হয়নি। সে জায়গায় যারা সায়েন্সে পড়ে তাদের অনেক প্র্যাকটিক্যাল রয়েছে, তাহলে প্র্যাকটিক্যাল শেষ হয়নি। যদি আমাদের 12টা প্র্যাকটিক্যাল থাকে, সেখানে যদি আমাদের 4টে প্র্যাকটিক্যাল শেষ হয়, তাহলে আর 8টা যদি বাকি থাকে, আমরা কেন সেখানে অফলাইন এক্সাম দেব? আর একটা কথা, আমাদের যদি অনলাইন এক্সাম হয় এবং সেখান থেকে যদি আমাদের একাডেমিক স্কোর কম আছে, পার্সেন্টেজ কম আছে, তাহলে আমরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের সাথে আমরা ভর্তি হতে পারবো না এবং নম্বর বিভেদ একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, নম্বর বিভেদ একটা ব্যারিয়ার হয়ে দাঁড়াবে। आपका नाम? मेरा नाम है कृष्णानु बारिक। मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय का एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन सी स्ट्रीम से पढ़ रहे हो आप? मैं एम.कॉम स्ट्रीम से हूँ। एम.कॉम स्ट्रीम से। अच्छा, यहाँ पे किस बात का प्रोटेस्ट चल रहा है? देखिए, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके बारे में पूरा बंगाल जानता है अभी तक कि स्टूडेंट लोगों को 1 महीना तक क्लास किया गया। अच्छा। और क्लास देने जाने के बाद ऑनलाइन मोड में चला गया। उन लोगों ने ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न में ही पढ़ाया है। अच्छा। अभी अचानक से उन लोगों का बोलना है कि हम लोगों को ऑफलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो हम लोग तो कुछ सीखे ही नहीं, तो हम लोगों को सिखाना पड़ेगा, फिर तो हम एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे ऑफलाइन के लिए। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के हैं, जो मैथ के हैं, जो इकोनॉमिक्स के, वो लोग तो ऑफलाइन मोड में सीखे ही नहीं, तो अभी ऑफलाइन मोड में क्लास ही नहीं हुआ, ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे दें? मतलब आपका कहना है कि ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन मोड पे हुआ है? 1 महीना तक क्लास ऑफलाइन हुआ है, बाद बाकी 3 महीने तक क्लास ऑनलाइन मोड में हुआ है। तो अभी हम लोगों का मांग है कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना है तो जून से लेके 4 महीने तक आप ऑफलाइन एग्ज़ाम क्लास लीजिए, फिर हम सीखते हैं, फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए तैयार है। अगर आप अभी लेंगे एग्ज़ाम तो हम लोगों के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम ही सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है, क्योंकि 90% यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल्स आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन ऑनलाइन मोड। इफ़ वी गिव ऑफलाइन एग्ज़ाम देन वी कैन पीछे पे पड़ जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों का जो CGPA ग्रेड है बाद में जाके जब सेट या नेट के एग्ज़ाम में बैठेंगे तब हम उन लोगों से पीछे रह जाएंगे कुछ भी कारण से। बाद अगर तो एग्जाम घोषित कर दिया गया कि ऑफलाइन मोड पे लिया जाएगा तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? देखिए, उन लोगों के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है कि स्टूडेंट लोगों का जो इनिशियल स्टेज है, मेंटल कंडीशन है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को नहीं पता है हम कौन से मोड में एग्ज़ाम दें, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम मोड एंड ऑफलाइन मोड 2 एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट है, एग्ज़ाम क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट है। तो अभी तक अगर हम लोग पता ही नहीं है कि कौन से मोड में एग्ज़ाम दे तो प्रिपरेशन कैसे करें। तो इसके वजह से हम सोचते हैं कि उन लोग हमारा मेंटल कंडीशन, हमारा एजुकेशन कंडीशन, हमारा क्लास कंडीशन के ऊपर बात विचार करके हमारा हित में ही दाबी लेंगे। আমার নাম শম্পা দত্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে আমাদের 6 মাসের সেমিস্টার ক্লাস করিয়েছে 1.5 মাস ক্লাস করিয়ে বলছে এখন অফলাইন পরীক্ষা নেওয়া হবে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখন একটাই দাবি, না হয় আমাদের এখন যদি পরীক্ষা নিতে হয় অনলাইন নিতে হবে, যদি অফলাইন ওরা নিতে চায় তাহলে 4 মাস আমাদের সময় দিতে হবে। এই জুন থেকে 4 মাস সময় দিতে হবে, তবে আমরা অফলাइन পরীক্ষা দিতে পারবো। আর যদি এখন পরীক্ষা নিতেই হয় তাহলে আমাদের অনলাइन পরীক্ষা, আমরা এটাই দাবি জানাচ্ছি। अच्छा, ऑनलाइन इज टू ऑफलाइन रेशियो क्या था क्लास का? অনলাইন যদি আমাদের ক্লাস হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা তো অনলাইন এক্সামের দাবি করতেই পারি, তাই না? আমরা আমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল সব দিয়েছে অনলাইনে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের যদি বলা হয় অফলাইনে ক্লাস নিতে, কেননা অনলাইনে প্রিপারেশন অফলাইনের প্রিপারেশন পুরোটাই আলাদা। তো অনলাইনে আমাদের ক্লাস নিয়েছে, পুরো প্রিপারেশনটাই আমাদের অনলাইনে করিয়েছে, এখন বলছে অফলাইন আমাদের পরীক্ষাটা হবে। তো সেক্ষেত্রে ওই জন্য আমরা অনলাइन পরীক্ষার দাবি করছি, যেহেতু পুরো ক্লাসটাই আমাদের বেশিরভাগ ক্লাসটাই অনলাइने হয়েছে। अच्छा, अगर तो एग्ज़ाम ऑनलाइन पे हो तो आपको ऐसा कहीं नहीं
लगता कि कहीं दूसरे जगह पे सपोजिटली एमए करने के लिए जो लोग एमए करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा? আমি নিজে এমএ স্টুডেন্ট। আমরা নিজে আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একমাত্র বলছেন এখনও কোনো টিউশন নেয়নি, কিন্তু অন্য ইউনিভার্সিটি যেটা অনলাইনে অলরেডি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে। আর অন্য ইউনিভার্সিটি যেখানে অনলাইন, আমাদের যদি অফলাইন পরীক্ষা হয় তাহলে এমনিতেই আমরা মার্কসের দিক থেকে আমরা কমে যাব এবং আমাদের পরবর্তীকালে ইউজিরা পিজিতে ভর্তি হওয়ার সময় অসুবিধা হবে এবং পিজিরা যখন হায়ার স্টাডিতে যাবে সব ইউনিভার্সিটির থেকে পিছিয়ে পড়বে তারা সব মার্কসের দিক থেকে। এই জন্যই আমরা অনলাइन চাইছি এবং সেম ইকুয়ালিটি চাইছি যাতে সব यूनिवर्सिटी যেন ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करें। अगर तो ये घोषित कर दिया गया कि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे होगा तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस पे? আমরা এখানে বিক্ষোভ চালাবো যতক্ষণ না আমরা এখানে কালকে থেকে অনশনে বসেছি, যতক্ষণ না আমরা আমাদের কর্তৃপক্ষ বলবে যে আমরা অনলাইনে ডিক্লেয়ার করব ততক্ষণ আমরা এখানে অনশন চালাবো। ऋषभ बैनर्जी। अच्छा, कल्याणी यूनिवर्सिटी और वर्धमान यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए घोषणा किया है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है उन लोग जैसे बाकी 12 यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डिक्लेयर कर किया है ऑलरेडी, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी और जेयू सिर्फ बचा हुआ है, तो हम लोग क्यों ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे? हम लोग का 6 मंथ का सेमिस्टर 2 महीना ऑफलाइन हुआ है, तो आप एग्ज़ाम तो ऑनलाइन तो लेने का ही बात है, तो बहुत सिंपल हिसाब है ना। तो क्यों हम लोग ऑफलाइन देंगे एग्ज़ाम? जैसे क्लास नहीं हुआ है, हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन लोग का ऑनर्स है साइंस सब्जेक्ट का या ज्योग्राफी का, उन लोग का प्रैक्टिकल्स भी नहीं हुआ है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग तो ऑफलाइन एग्ज़ाम देने का कोई बात ही नहीं है। अगर उन लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हम लोग को टाइम दीजिए, हम लोग को 4 महीना 5 महीना हम लोग को पढ़ने का टाइम दीजिए, और डिसीजन उन लोग को बहुत पहले जाना मतलब बोलने का बात था। इतना लेट करेंगे तो नहीं पॉसिबल होगा ना। आपको क्या बोलना है, क्लासेस ठीक तरह से नहीं हुआ है? एग्जैक्टली एकदम ही नहीं हुआ है। 6 महीना का सेमिस्टर का टाइम था, वैसे भी हम लोग को कम टाइम मिला है। 4 महीना में सेमिस्टर वो लोग खत्म कर दे रहा है। 4 महीना में 1 महीना की 1.5 महीना हार्डली ऑफलाइन क्लास हुआ है, फिर भी ऑफलाइन क्लास में कॉलेज में अगर 1000 स्टूडेंट्स होता है तो 100 लोग आता है। ये कोरोना में, ये गर्मी में कोई नहीं आता है कॉलेज में, तो ऐसे टाइम पे हम लोग ऑफलाइन एग्जाम देने का कोई बात ही नहीं है। आपका नाम सर? मेरा नाम सुमन चंद्र दे। ओके, प्रोटेस्ट किस बात का, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया गया। 6 महीने का सिलेबस है, 2 या 3 महीने में क्या कंप्लीट होता है, और उस 2 या 3 महीने में ही ज़्यादातर जूम में हुआ है, तो क्यों हम ऑफलाइन में दे? हम लोग 4 या 5 दिन से सिर्फ यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा है, मैम नहीं निकल रहा है, बिना खा के आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं सुनाई दे रहा है। साल भर मटेरियल दिया जाता है, सीधा सवाल आपसे, साल भर का समय दिया जाता है, मटेरियल दिया जाता है आपको पढ़ाई के लिए, अचानक से आप कह रहे हो कि हमें एग्ज़ाम का नोटिस दिया जाता है, तो साल भर क्या आपने पढ़ाई करी, किस तरीके से? ये सवाल सीधा न्यूज़। तो सबसे ज़रूरी बात है, बीकॉम का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, मतलब इससे पहले का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था जनवरी महीने में, और उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ था मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने से जून का महीना एकदम पहला चरण चल रहा है, तो कैसे 6 महीना हो जाता है, और हमारा तो 6 महीने का ही सिलेबस है, तो क्यों हमारा सिर्फ 2 महीने पड़े? हमको टाइम नहीं दिया गया था, इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का 6 सेमेस्टर है और हमारा 6 महीने का कोर्स होता है, उसमें 2 महीने क्लास हुआ, इसीलिए। नहीं, यहाँ पे कुछ छात्रों से जानने को मिला कि स्टडी जो है कम कराई गई, समय जो कम दिया गया और ऑफलाइन एग्ज़ाम का घोषणा कर दिया गया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? हम लोग भी वही चाहते हैं, अगर आप लोगों का अगर सीयू को ऑफलाइन लेना है तो वो 4 महीने हम लोग को सही से क्लास करवाए, हम लोग को सीखना है, हम सीख के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ओके, हेड से आपकी मांग क्या है, लास्ट है हमारे दर्शकों को बताओ। हम लोगों का अभी मांगे, अगर अभी सीयू को क्लास लेना है तो उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, और अगर उनको ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना है तो 4 महीने क्लास करवा के फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना होगा। ठीक है, छात्र को कैसे उन्होंने बताया कि वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के खिलाफ, उनकी मांग ऑनलाइन एग्ज़ाम है। बहुत न्यूज़ प्लस इंडिया, मैं आकिब रजा, कैमरामैन ओइसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।